ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرال نے ایک دم ہی احتشام درانی کو پیچھے دھکیلا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو حق رکھتا ہوں میں۔ احتشام درانی کی آنکھوں میں چبھن تھی۔ میرال کو زبردستی احتشام درانی کی بیوی بنا دیا گیا تھا۔ وہ لندن سے آئی تھی، لیکن خاندانی رسم و رواج کے مطابق اس کے ماں باپ دھوکے سے اسے پاکستان لائے، وہ بھی ایک گاؤں میں رہنے والے ہاشم درانی سے شادی کروانے کے لیے۔ جب سے شادی ہوئی تھی میرال اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی، لیکن آج خراب موسم اور راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ آدھی رات کو کسی ہوٹل میں موجود تھے۔ یہاں احتشام نے اور کتنی دیر لگے گی؟ میں اب تھک چکی ہوں۔ پاپا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا گاؤں بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے، لیکن یہاں دیکھیں، سڑکیں اتنی خراب ہیں۔ جو سفر 3 گھنٹے کا تھا اب وہ 6 گھنٹے میں بدل گیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس لندن چلے جاتے ہیں۔ آج کل اتنی سہولیات موجود ہیں، ہم لوگ ویڈیو کال پر بھی تو سب بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ زبردستی مجھے یہاں لے آئے۔ وہ بہت ہی بیزاریت سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتی اپنے ڈیڈ سے مخاطب ہوئی، جو اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ دیکھو بیٹی، یہ ملک چاہے جیسا بھی ہو، بے شک سڑکیں خراب ہوں، لیکن ہے تو یہ اپنا۔ میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اس زمین کو محسوس کرو۔ تمہاری موم اور میں نے یہاں پر بہت سال گزارے ہیں۔ تمہاری پیدائش بھی تو یہیں ہوئی تھی، لیکن تمہیں اپنا بچپن یاد ہی نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں لندن جاتا ہی نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے ماضی کی یادوں میں گم ہو گئے۔ میرال نے اپنے پاپا کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے باقی کا سفر کاٹنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے پاپا سے بحث میں کبھی جیت نہیں سکتی۔ وہ ایک بہت ہی اچھے ڈیبیٹر تھے، اور جب بھی وہ کسی بات پر اعتراض کرتی تو ایسی دلیلیں دیتے تھے کہ وہ آگے سے چپ ہو جاتی تھی۔ حالانکہ وہ غصے کی کافی تیز تھی اور ہارنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں ایک اس کے پاپا ہی تھے جن کے سامنے وہ ہار مان لیتی تھی، اور انہی کے مجبور کرنے پر تو آج وہ پاکستان آئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماما اور پاپا دونوں لندن چلے آئے تھے۔ اس کے پاپا نے یہاں سے لٹریچر میں ڈگری حاصل کی اور یہیں پر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی موم یہاں چھوٹا سا بزنس کرتی تھی۔ کہنے کو تو وہ لوگ لندن میں رہتے تھے، لیکن اپنی روایات کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ میرال کو کبھی انہوں نے کھلا نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ اسے اپنی روایات سے باندھے رکھا۔ حالانکہ وہ ان تمام چیزوں سے چڑھتی تھی، مگر اپنے پیرنٹس کے آگے زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ ہر ہفتے اس کے پیرنٹس گاؤں میں حویلی والوں کو کال کرتے اور اسے بھی زبردستی ساتھ بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے رشتوں کو پہچانے۔ میرال کے بہت سے کزنز تھے، لیکن سوائے مرینا کی اس سے کسی سے بھی اچھی بات چیت نہیں تھی۔ مرینا اس کی فیس بک فرینڈ لسٹ میں بھی شامل تھی۔ اسے مرینا کافی سلجھی ہوئی لڑکی لگی، اسی لیے اس نے اس سے دوستی کی۔ وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی، اور گاؤں کی شاید پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بننے جا رہی تھی۔ مرینا کے منہ سے وہ ہمیشہ احتشام کا ذکر سنتی تھی۔ احتشام مرینا کا اکلوتا بھائی تھا اور حویلی کا ہونے والا سردار بھی۔ احتشام پڑھا لکھا خوبرو مرد تھا، گاؤں کی زمینوں کو سنبھالتا تھا اور حویلی کے تمام معاملات بھی دیکھتا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے خوب لاڈ پیار میں بڑا ہوا تھا، لیکن اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا۔ گاؤں میں سب لوگ اس کی خوب عزت کرتے تھے، لیکن جب بھی مرینا احتشام کا ذکر کرتی تو میرال کو بہت ہی زیادہ برا لگتا، بلکہ وہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے گاؤں اور گاؤں والوں کی زندگیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ بہت ہی پرانے خیالات کے مالک ہیں، اور وہاں پر لڑکیوں کو کسی طرح کی آزادی میسر نہیں۔ حالانکہ مرینا نے خود اسے بتایا تھا کہ وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے،
लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो खुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और अपने आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रही थी, जब अचानक एक दिन उसके पापा ने उससे कहा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते ही वो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। पापा, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। वहां जाकर क्या करेंगे? ऐसा करें आप कुछ दिन के लिए वहां रहने चले जाएं और फिर वापस आ जाना। उसने बहुत ही मजे से मशवरा दिया, लेकिन अपने पापा की अगली बात सुनते ही उसके हाथों के तोते उड़ गए। नहीं बेटा, कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि हम हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। तुम्हारी मामा भी अपना बिजनेस यहां से पाकिस्तान ट्रांसफर कर रही हैं और मैं भी अपनी जॉब से रिजाइन दे चुका हूं। वैसे भी वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं। हमारी बहुत सी जमीनें हैं और एक बहुत बड़ी हवेली भी है। वहां पर कारोबार वगैरह भी है। हमें किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस अपने पेपर दे लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। पापा, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने अपने फ्यूचर प्लान्स यहाँ के हिसाब से सोच रखे हैं। पढ़ाई के बाद मुझे जॉब करनी है और मैं लंदन में ही जॉब करना चाहती हूँ। मुझे कहीं और नहीं जाना। उसने हर मुमकिन बहस करने की कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके पापा ने अपना फैसला कर लिया था, मगर आखिरी दिन तक वो मान नहीं रही थी। फिर थक हार कर उसकी मामा और पापा ने उसे झूठ कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन वहां रहकर वापस आ जाना। यहां तुम अकेले सरवाइव कर सकती हो, बचपन से रह रही हो। अब खुश हो ना? ये सुनकर वो भी खुश हो गई। उसे लगा कि वाकई में उसे कुछ दिन के लिए वहां रुकना होगा। चलो, कुछ नहीं, मैं पाकिस्तान घूम लूंगी, थोड़े दिन की तो बात है। यही सोचकर उसने अपना सामान वगैरह पैक किया और अपनी फ्रेंड्स को बताकर पेपर्स के फौरन बाद अपने मामा पापा के साथ पाकिस्तान चली आई। एयरपोर्ट से उन्हें पिक करने के लिए कोई नहीं आया था, क्योंकि उसके पापा ने हवेली में किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया था। वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे। जब वो लोग एयरपोर्ट से निकलकर कैब में बैठे तो उसे लगा कि थोड़ा वक्त लगेगा पहुंचने में। वहां तो रास्ता वगैरह बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब 1 घंटा गुजर गया तो वो बेचैनी से बार बार अपने पापा की तरफ देखकर पूछने लगी, और कितनी देर लगेगी? उसके पापा ने उसे वक्त बताया कि अभी कुछ घंटे बाकी हैं। यहां से गांव काफी ज्यादा दूर है। ये सुनकर वो बोर हो गई, लेकिन जब गांव की हुदूद में कदम रखा तो पता चला यहाँ तो रास्ते हद से ज्यादा खराब हैं। वहां रोड भी ठीक से बनी नहीं हुई थी, इसीलिए गाड़ी भी बहुत मुश्किलों से चल रही थी। पापा, आपने तो कहा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब देखें कितना खराब रास्ता है। रात हो चुकी है, आखिर हम लोग कब तक पहुंचेंगे? अब वो हद से ज्यादा बेजार हो रही थी। इतने लंबे सफर के बाद उसे शदीद नींद आ रही थी और थकन भी हो रही थी। ऊपर से जहाज में उससे कुछ खाया भी नहीं गया था। कई घंटों से भूखी थी। उसके पापा उसे बार बार तसल्ली देते कि थोड़ी देर सो जाओ, जब पहुंच जाएंगे तो मैं उठा दूंगा। फिर थक हार कर वो भी सो गई। हवेली पहुंचकर उसके पापा ने उसे उठाया। हवेली के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बस कुछ लाइटें जल रही थीं, जिनमें हवेली ठीक से नजर नहीं आ रही थी। पापा, यहां तो बहुत ज्यादा अंधेरा है और यहां शायद सब लोग सो रहे हैं। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? वो बेचैनी से बोली तो वो मुस्कुरा उठे। फिर वो आगे बढ़े और दरवाजा बजाया। अंदर से चौकीदार निकलकर बाहर आया। थोड़ी देर तक तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब उसके पापा ने अपना तारुफ करवाया, मैं अहमद शाह हूं, इस हवेली का छोटा बेटा, तो वो फौरन से खुशी से पागल हो गया। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और उनका सामान वगैरह रखा और फिर अंदर सबको बताने चला गया। बीजान को रात गए इस पहर अपने बेटे के आने की खबर मिली तो वो खुशी से बेकाबू हो गई। एकदम से हवेली में हलचल मच गई थी। इन्हें देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग सालों बाद आए थे। खासतौर पर मिराल तो कभी भी नहीं आई थी। एक मरीना ही थी जिसे देखकर मिराल को सुकून मिला, क्योंकि वो सिर्फ उसे ही जानती थी।
वो कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आई हुई थी। वो मरीना के साथ एक तरफ बैठ गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर में उनके लिए खाना भी लगवा दिया गया। वो काफी हैरान हुई कि इतनी रात को इतने खाने का एहतमाम कैसे किया, लेकिन उसे भूख लगी थी, इसलिए फौरन से खाना खाना शुरू कर दिया। पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूं, उसने अपने पापा की तरफ देखते कहा। तो बीजान ने फौरन से मुलाजमा को उसका कमरा तैयार करवाने का हुक्म दिया और फिर मरीना उसे साथ लेकर उस कमरे में चली आई। हवेली काफी बड़ी बनी हुई है, मैं तुम्हें सुबह पूरी हवेली घुमाऊंगी। इस वक्त तो तुम सो जाओ। यहां गांव में सब लोग जल्दी सो जाते हैं। हमें तुम लोगों के आने का पता नहीं था, वरना एहतशाम भाई तुम लोगों को एयरपोर्ट पिक करने के लिए आ जाते। आजकल वो शहर में ही हैं। बीजान ने फोन करके उन्हें तुम लोगों के आने की इत्तला दे दी है। सुबह होते ही वो निकल आएंगे। मरीना मसरूफ से अंदाज में बेडशीट मुलाजमा के साथ बिछवाते हुए उसे बता रही थी। उसका रूम रेडी करवाकर वो वहां से निकल गई। मीराल भी थोड़ी देर में ही सो गई थी। थकन की वजह से उसकी आंख जल्दी लग गई। अगली सुबह उठी तो सुबह के 8 बज रहे थे। थोड़ी देर तक तो उसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर याद आया कि रात को वो गांव आ गई थी। मुंह हाथ वगैरह धोकर नीचे आ गई। मरीना सामने बैठी नाश्ता कर रही थी। इसे देखकर फौरन से उसके करीब आई। आ जाओ मिराल, आओ नाश्ता करो। तुमने शायद ऐसा नाश्ता कभी ना खाया हो। यहां पर हर चीज खुद से तैयार की जाती है। हमारे खेतों में ही सब कुछ तैयार होता है। मैं तुम्हारे लिए चाय निकाल कर लाती हूं। ये कहकर वो उसके लिए चाय लेने निकली। नाश्ते के बाद मरीना ने उसे पूरी हवेली घुमाई और गांव का भी एक चक्कर लगवा लिया। उसे गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा था। दोपहर तक एहतशाम भी पहुंच चुका था। पहली नजर में ही उसे एहतशाम अकड़ू नजर आया। उसने इससे ज्यादा बातचीत भी नहीं की और चुपचाप बैठी रही। वो ज्यादा वक्त मरीना के साथ गुजारती थी। बाकी कजन से भी उसकी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन यहां सब लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। कुछ दिन लगे थे उसे घुलने मिलने में। सिर्फ एहतशाम था जिससे वो बात नहीं करती थी। वैसे भी वो पूरा दिन उसके पापा के साथ जमीनों पर ही मसरूफ रहता था। एक दिन उसके पापा एहतशाम के साथ घर वापस आए तो बीजान ने एहतशाम की वालदा और अहमद शाह को अपने रूम में बुला लिया। न जाने 3 घंटे कमरे में बंद वो लोग क्या बातें करते रहे। उसके बाद जब उसके पापा बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट थी। वो तेजी से अपने पापा की तरफ आई और उनसे पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो आप इतना खुश हो गए हैं? तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया और अपनी बेगम के साथ कमरे में जाकर कुछ बातचीत करने लग गए। वो काफी हैरान थी कि सब यूं छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हैं। जब उसने मरीना से इस बारे में पूछने की कोशिश की तो मरीना ने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। वो किसी बात से वाकिफ नहीं थी। अगले दिन मरीना को हॉस्टल वापस जाना था। उसने एहतशाम से कहा कि मुझे शहर छोड़ाएं, तो मिराल भी भागी भागी आई। वो इतने दिन से गांव में ही थी और गांव के अलावा कहीं नहीं गई थी। अब शहर जाना चाहती थी। उसने फौरन से एहतशाम से कहा कि मुझे भी शहर छोड़ दो। एहतशाम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें शहर जाकर क्या करना है? मरीना ने तो हॉस्टल जाना है, क्या तुम उसके साथ हॉस्टल में रहोगी? आखिर में उसका लहजा तंजिया हो गया, जिस पर मिराल का मुंह बन गया। नहीं, मैं वहां जाकर थोड़ी शॉपिंग करना चाहती हूं, शहर में घूमना चाहती हूं, तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। वो बार बार उसे तुम कह रही थी और एहतशाम को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब लोग उसे आप ही कहकर मुखातिब करते थे। मैं तुम जैसी बदतहजीब लड़की को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। अगर तुमने शहर जाना है तो किसी और के साथ जाओ। ये कहकर मरीना को साथ लिए वो जीप आगे बढ़ा ले गया। अपनी इतनी बेइज्जती पर मिराल को शदीद गुस्सा आया। कितना बदतमीज शख्स है, ये शहर तक जाने को ही तो कहा था। पांव पटकती हुई वो वापस आ गई, जहां सामने ही बैठे उसके पापा और बीजान कोई बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे वहां आते देखा फौरन से खामोश हो गए।
पता नहीं घर में क्या खिचड़ी पक रही है जो सब लोग छुप छुप कर बातें करते हैं और कोई मुझे बताता भी नहीं। बड़बड़ाते हुए वो अपने रूम में वापस आकर बैठ गई। मरीना चली गई थी और अब उसे बहुत बोरियत हो रही थी। एक वही तो थी जिसके साथ वो थोड़ा वक्त गुजार कर खुश हो जाती थी। अब वो भी नहीं थी। आखिर मैं इस हवेली में क्या करूं? पापा भी बीजान के साथ बैठे रहते हैं। यहां तो कोई मेरी परवाह ही नहीं कर रहा। बोरियत हद से सिवा हो गई तो वो तेजी से नीचे आई और अपने पापा के पास आकर बैठी। पापा, मुझे नहीं पता, मुझे शहर जाना है और आप मुझे लंदन वापस कब भेज रहे हैं? आपने कुछ दिन का कहा था। अब मैं यहां बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूं। जल्दी से मेरे टिकट करवाएं, मुझे वापस जाना है। उसके यूं बोलने पर एकदम से उसके पापा गड़बड़ा गए और बीजान की तरफ देखा, लेकिन आंखों ही आंखों में बीजान ने उन्हें तसल्ली का इशारा दिया। क्या हुआ मिराल बेटी, तुमने तो अभी पूरा गांव भी नहीं देखा। बहुत से रिश्तेदार हैं जिनसे तुमने मिलना है, और अगर शहर जाना चाहती हो तो मैं आज ही एहतशाम से कहूंगी, वो तुम्हें शहर ले जाएगा। मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना। थोड़ी देर पहले जब मैंने उससे कहा कि मुझे शहर ले जाओ तो इतनी बदतमीजी से मुझे डांट दिया। मगर अब मैं यहां मजीद नहीं रहना चाहती। मैं अब जल्द से जल्द वापस लंदन जाना चाहती हूं। मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। एक बार फिर से उसने लंदन जाने की रट लगा दी। बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। बीजान ने एक बार फिर से उसे पिचकारने की कोशिश की, लेकिन उसने अब इरादा कर लिया था कि वो हर हाल में वापस जाकर रहेगी। बाद में मोबाइल में खुद ही वो ऑनलाइन टिकट चेक करने लगी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पापा की इजाज़त के बिना टिकट कंफर्म करती। रात को वो एक बार फिर उनके रूम में आई। इससे पहले कि वो बात शुरू करती, उसके पापा ने उसे अपने सामने बिठाया। मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जी पापा, मैं भी आपसे ज़रूरी बात करने आई हूं। पहले मेरी बात सुन लो, बाद में अपनी बात कहना। उन्होंने फौरन से इसकी बात काट दी। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो पापा इतने संजीदा हैं। वो दिल ही दिल में सोचती उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। देखो बेटा, अब तुम वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। हम तुम्हें जिस मकसद से यहाँ लाए थे, अब वो पूरा करने का वक्त आ गया है। हमने तुम्हारा रिश्ता एहतशाम से तय कर दिया है। अगले ही हफ्ते तुम दोनों की शादी है। जितनी तैयारी करनी है कर लो, और मुझे इस पर मजीद कोई बहस नहीं करनी, वरना इस हवेली से निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपनी बात पूरी करके बिना उसका जवाब सुने वो वहां से उठकर चले गए। वो तो शादी का सुनकर ही, बल्कि एहतशाम से शादी का सुनकर बिल्कुल सख्ते में आ गई थी। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आई कि उसके पापा ने बोला क्या है, और जब समझ आई तो वो तेजी से चलती उनके पीछे भागी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर सब लोग नीचे जमा हो गए। मैं कभी भी एहतशाम से शादी नहीं कर सकती। शादी का मैंने अब तक सोचा भी नहीं। आप मुझ पर इतना जुल्म मत करें। ये जुल्म नहीं हो रहा, मैंने फैसला कर लिया है और हम सबका ये मुश्तरका फैसला है। तुम्हारी मामा भी यही चाहती हैं। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखते ताईद चाही तो वो भी मुस्कुराते हुए सर हिला गईं। सब लोग इस शादी के लिए राजी थे। बीजान भी अपना फैसला सुना चुकी थी। वो सर थाम कर बैठ गई। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहां आई ही क्यों? जब ये खबर एहतशाम के कानों तक पहुंची तो उसने भी खूब एहतजाज किया। मैं इतनी बदतमीज लड़की से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। लेकिन बीजान फैसला कर चुकी थी और उन दोनों के रिश्ते की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। हवेली भर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। उसने लाख इस शादी से इनकार करना चाहा, लेकिन उसका कोई इनकार काम नहीं आया। मरीना भाई की शादी का सुनकर हॉस्टल से घर आई। उसे भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी जबरदस्ती के रिश्तों की कायल नहीं थी। उसने एक दो बार
बीजान से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। बहरहाल शादी का दिन आया तो मिराल का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर भी उसका निकाह एहतशाम से करवा दिया गया। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, सिवाय दूल्हा और दुल्हन के। वो दोनों ही मुंह बनाए बैठे थे। दोनों को यूं लग रहा था जैसे जबरदस्ती एक दूसरे पर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया हो। अब एक दूसरे को कबूल करने के सिवा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। खाने के बाद उसे रुखसत करके एहतशाम के कमरे में पहुंचा दिया गया, मगर एहतशाम के आने से पहले पहले वो चेंज करके सोने के लिए लेट गई। एहतशाम रूम में आया तो उसे यूं लेटा देखकर उसे सख्त गुस्सा आया। तुम्हें क्या लगता है मीराल बीबी, क्या मैं तुम्हारा दीदार करने के लिए बेताब हो रहा था? उसने एक नज़र करवट लेकर सोई मीराल पर डालते कहा और खुद भी चेंज करके सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह मिराल की आंख दरवाजे की आवाज से खुली। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मरीना खड़ी थी। उससे मुस्कुराते हुए बोल दी, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिराल ने उसकी बात पर मुड़कर कमरे में देखा तो एहतशाम वहीं कहीं नहीं था। रात जब उसकी आंख खुली थी तो उसने एहतशाम को सोफे पर सोते देखा था। न जाने कब उठकर चला गया। मरीना को 5 मिनट में आने का कहकर वो तैयार होने चली गई। नीचे आई तो सब उसी का इंतजार कर रहे थे। एहतशाम भी वहीं बैठा था। उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे इग्नोर करके नाश्ता करने लगी। वो अब भी उससे नाराज थी और इसका इजहार भी खूब कर रही थी। भाई, हमने परसों वलीमे का सोचा है, सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लो। बीजान ने नाश्ते के बाद ऐलान किया तो सब तैयारियों में मसरूफ हो गए। एहतशाम भी किसी काम से बाहर चला गया। वो पूरा दिन मरीना के साथ ही बैठकर बातें करती रही। वलीमे वाले दिन वो दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। वलीमा दिन में हुआ था और वलीमे के फौरन बाद ही बीजान ने कहा कि तुम एहतशाम के साथ उसके शहर वाले घर में अकेले रहोगी, क्योंकि एहतशाम ज्यादा वहीं रहता है। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए। वो जो ये सोचकर खुश हो रही थी कि एहतशाम के जाने के बाद वो आराम से रहेगी, बीजान ने उस खुशी पर भी पानी फेर दिया और उसी शाम वो उसके साथ शहर चली आई। पूरे रास्ते उसने एहतशाम से कोई बात ना की। वो दोनों अब भी अलग सोते थे। वो उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी, ना ही एहतशाम ने ऐसी कोई दिलचस्पी जाहिर की थी। तुम तैयार हो जाओ, आज हमें हवेली वापस जाना है। लैपटॉप में मसरूफ एहतशाम ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखते कहा, जो 1 घंटे से वार्डरोब खोले खड़ी ना जाने क्या देख रही थी। उसकी बात पर मुड़कर उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी वापस क्यों जाना है आखिर? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? उसने उकता कर कहा। कोई इमरजेंसी नहीं है, बीजान ने कहा है कि कल तुम्हें हवेली लेकर आऊं। तुम शायद भूल रही हो कि हर इतवार को हमारी हवेली में सब लोग एक साथ मिलकर दावत का एहतमाम करते हैं और हमें भी उस दावत में लाजमी जाना है। तैयार हो जाना, मैं बस थोड़ी ही देर में काम मुकम्मल करके तैयार हो जाऊंगा। अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें सूटकेस में रख लो। उसे हुक्म देते वो दोबारा से लैपटॉप में लग गया। तुम एक दिन पहले नहीं बता सकते थे, अब अचानक से बता रहे हो? वो झुंझुलाए हुए दांत पीसती बोली। बहरहाल अब उससे बहस भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोशी से सूटकेस निकालकर अपने कपड़े रखने लगी। वैसे भी वो यहाँ इतने दिन से सिर्फ बोर हो रही थी। एहतशाम तो पूरा दिन अपने काम में मसरूफ रहता और वो घर बैठकर बस टीवी पर चैनल सर्फिंग करती रहती थी। तैयार होकर वो एहतशाम के साथ गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त शाम हो रही थी। गांव पहुंचते ही रात हो जानी थी, मगर जैसे ही वो लोग आधे रास्ते में पहुंचे तो तेज बारिश शुरू हो गई। ओ नो, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बारिश में सारे रास्ते खराब हो जाते हैं, एहतशाम ने परेशानी से कहा।
वो जल्द से जल्द हवेली पहुंचना चाहता था, मगर तभी अचानक गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। उफ, इस गाड़ी ने भी अभी खराब होना था। तुम अंदर ही बैठो, मैं देखता हूं इसमें क्या मसला है। उसने मिराल को हिदायत की और खुद गाड़ी से उतर गया। मगर मिराल को अकेली गाड़ी में डर लग रहा था, इसीलिए वो भी उतर गई। जब वो घर से निकले थे तब तो सोचा नहीं था कि मौसम यूं अचानक भी खराब हो जाएगा। मिराल हैरत से तेज बरसती बारिश को देख रही थी। आखिर इतनी अचानक से ये तूफानी बारिश कहाँ से शुरू हो गई? दिन में तो ऐसे कोई आसार नहीं आ रहे थे। वो धीरे से लबों में बड़बड़ाई, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट एहतशाम ने बखूबी सुन ली थी। तुम इतने दिन से यहां रह रही हो और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो सका कि यहां पर कभी भी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। कम से कम अपने साथ कोई शॉल या कोई और चीज रख लेती। अब देखो कैसे पूरी भीग चुकी हो। उसने ठंड से कांपती मिराल की तरफ इशारा करते कहा, जिस पर मिराल का दिमाग गुस्से से घूम गया। मैं तो यहां नई नई आई हूं, तुम तो सदियों से यही रह रहे हो। तुम नहीं ले सकते थे कुछ? वह एहतशाम के भीगे बालों की तरफ देखते बोली, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? कितनी बार कहा है मुझे तुम नहीं आप कहा करो, शौहर हूं मैं तुम्हारा। वो हमेशा की तरह दांत कचकचा कर बोला तो मिराल हूं हूं करती चेहरा मोड़ गई। रात के इस पहर वो लोग गाड़ी खराब के साथ उस खराब मौसम में बीच सड़क पर खड़े एक दूसरे से झगड़ने में मसरूफ थे। फिर एहतशाम ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं एहतशाम, सबसे पहले रहने का कोई बंदोबस्त करो। उसने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देकर कहा। वो अक्सर ही इस रास्ते से सफ़र करता रहता था, इसीलिए यहाँ मौजूद तमाम होटलों के बारे में उसे अच्छे से पता था और काफ़ी लोगों के साथ उसकी जान पहचान भी थी। उसने मिराल को एक नज़र देखा, गाड़ी की डिग्गी से सूटकेस निकाला और गाड़ी लॉक करके मिराल की तरफ आया। चलो मेरे साथ, ये कहते उसने मिराल का हाथ पकड़ा। हाथ छोड़ो मेरा, मिराल ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते कहा, लेकिन एहतशाम ने जोर से उसका हाथ थामे रखा। चुप करके मेरे साथ चलो, इस वक्त यहां अकेले रहना मुनासिब नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। वो उसे समझाना चाह रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह गुस्से में मुब्तला उसकी बात को समझ ही नहीं रही थी। मुसलसल उस पर चिल्लाए जा रही थी, मगर एहतशाम ने उसके चिल्लाने की कोई परवाह ना की और उसे अपने साथ लेकर एक होटल के पास आ गया। क्या हम इस होटल में रहेंगे? मिराल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तो क्या मतलब? इस वक्त तुम कहाँ जाना चाहती हो? इतनी बरसती बारिश में कहाँ जाओगी? इस होटल से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, और शुक्र मनाओ कि ये होटल भी मिल गया है, वरना यहां सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। एहतशाम ने गुस्से से कहा, जिस पर मिराल मुंह बनाते एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने इस होटल में नहीं जाना, कितना छोटा और गंदा सा होटल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है क्या यहां? उसकी बात पर एहतशाम को शदीद गुस्सा चढ़ा। देखो इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चुप करके अंदर चलो। ये होटल अंदर से बहुत साफ सुथरा है, मैं कई बार यहां पर रुक चुका हूं। अब तुम्हारे मुंह से कोई और आवाज ना निकले, और अपनी चादर ठीक करो। उसके कहने पर मिराल ने चादर ठीक की जो उसके सर से ढलक कर कांधों पर आ चुकी थी। अब वो उसे मजीद बहस करने की हिम्मत नहीं रखती थी। एक तो उसे सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी और ऊपर से वो मुकम्मल तौर पर एहतशाम के ही रहमो करम पर थी। वो जानती थी कि यहां पर उसे कोई और पनाहगाह नहीं मिलेगी। अंदर आकर एहतशाम ने जल्दी से कमरा बुक करवाया और उसे कमरे में पहुंचाया। तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं। नीचे आकर उसने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। यहां पर उन्हें थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कमरे में हीटर वगैरह था, जिससे मिराल को सुकून मिला। वो फौरन से अपने सूटकेस की तरफ आई और जल्दी से एक गर्म सूट निकाला और चेंज करके बैठकर एहतशाम का इंतजार करने लगी, जो खाना लेने गया था। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला
और एहतशाम अंदर दाखिल हुआ। ये लो गरम गरम बिरयानी खाओ, शुक्र करो इस वक्त ये भी मिल गई है, बहुत ही मुश्किल से बंदोबस्त करवाया है, यहाँ पर खाने का इंतजाम नहीं है और इस वक्त कोई रेस्टोरेंट भी नहीं खुला था। वो तो होटल वाला मेरे जानने वाला था, इसलिए उसने अपने घर से खाना मंगवा दिया। मिराल के सामने खाना रखते बहुत तफसील बता रहा था, मगर मिराल को यह सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खाना देखकर उसकी भूख जाग उठी। जल्दी से उसने खाना खाया और फिर कंबल ओढ़कर लेट गई। एहतशाम ने वेटर को बुलाकर खाली प्लेटें वगैरह उसे थमाई। लाइट ऑफ करके वो उसके बराबर में आकर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी निगाहों के सामने मिराल का चेहरा आ रहा था। जब वो बारिश में भीगी उसके सामने खड़ी थी, उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर गोया चिपक सी गई थीं। वो इस मंजर को भूल ही नहीं पा रहा था। वैसे भी जब से शादी हुई थी वो मिराल से दूर ही तो रहा था। कुछ वो उसे वक्त देना चाहता था और कुछ उसकी बदतमीजी उसे शदीद गुस्सा दिलाती थी, इसलिए उसके करीब नहीं आता था। लेकिन इस वक्त वो उसके पहलू में बेखबर सो रही थी। उसके गहरे ब्राउन बाल पूरे तकिए पर बिखरे हुए थे। बेखुदी में ही एहतशाम उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। शायद उसका लम्स था या क्या, मिराल ने एकदम से करवट ली और उसके बेहद करीब आ गई। उसे अपने इतने करीब देखकर एहतशाम की सांसें थम सी गईं। वो बेसाख्ता उसे अपने बेहद करीब कर गया। तभी मिराल की आंख खुली। उसे इतने करीब देखकर वो फौरन से पीछे हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? एहतशाम जो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसे पीछे धकेलते मिराल चिल्लाई, क्या मतलब है? शौहर हूं, अपना हक ले रहा हूं। जवाबन वो भी जोर से बोला और उसे दोबारा अपने करीब किया। मिराल को समझ नहीं आई कि उसे कैसे रोके। उसने पूरा जोर लगा कर देख लिया, मगर उसे रोक नहीं पाई। अगली सुबह मिराल का मूड बहुत खराब था। वो लोग जब हवेली पहुंचे तो उसे इतने गुस्से में देखकर बीजान ने जब उससे पूछा, क्या हुआ है? एहतशाम ने कुछ कहा तो वो बिना सोचे समझे एहतशाम की तरफ देखते बोली, इसने मेरा फायदा उठाया है, इसे शर्म भी नहीं आई। सब उसकी बात सुनते सकते में आ गए, मगर वो बिना रोके बोले जा रही थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस बदतमीज और गौसीले इंसान से शादी नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। पहले तो धोखे से यहां लाए और फिर जबरदस्ती शादी कर दी। अब देख लें क्या किया है इसने मेरे साथ। वो झूठ मूठ के आंसू बहाते जोर जोर से बोल रही थी, क्या किया है मैंने? हाँ, अपना हक ही तो लिया है। शौहर हूं तुम्हारा और शादी इसीलिए की जाती है। अब अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो याद रखना, मैं दोबारा कभी मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती होते देखकर एहतशाम ने चिल्लाकर कहा, क्या मुझे तलाक दोगे? मैं खुद तुमसे डाइवोर्स लूंगी। कल ही मैं केस फाइल करती हूं। वो अपनी असली हठधर्मी से बोली, जिस पर एहतशाम और बाकी सब ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। अहमद, तुमने क्या तमीज सिखाई है अपनी बेटी को? पता भी है ये क्या बोल रही है? जो मुंह में आता है बोलती रहती है। बाहर रहकर तुम इसे तरबियत देना ही भूल गए। बीजान ने शदीद गुस्से में अहमद शाह को मुखातिब करते कहा, जो सबके सामने अपनी बेटी की इतनी बदजुबानी पर शर्मिंदा से होकर रह गए थे। बीजान, आप गुस्सा ना हो, मैं इसे समझाऊंगा। वो सर झुकाते बोले, पापा आप इनके सामने क्यों सर झुका रहे हैं? आप जानते हैं मैं इस शादी से खुश नहीं हूं, तो मुझे डाइवोर्स लेने दे। एक बार फिर से मिराल ने अपनी जबान खोली। तुम खामोश नहीं बैठ सकती हो? कहा है ना कि बाद में बात करूंगा। इस बार अहमद शाह का लहजा सख्त था, जिस पर मिराल का चेहरा उतर गया। एहतशाम तो गुस्से से ही वहां से चला गया और बाकी लोग भी वहां से निकल गए। तो बीजान ने मिराल को अपने पास बुलाया, जो मुंह बसोरे एक तरफ बैठी थी। देखो, तुम यहां पर हमारी सिर्फ पोती बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बहू बनकर भी रह रही हो।
तुम्हें हमारी रिवायात की पासदारी करनी होगी। यहाँ कोई तुम पर जुल्म नहीं करता, बल्कि सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, और तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अपने रिश्ते का एहसास ना हो। आइंदा अपने शौहर से इस तरह से बात बिल्कुल मत करना। हमने तुम्हें ढील इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचने लग जाओ। आइंदा मुझे ऐसी बदतमीजी ना नजर आए। उसे सख्ती से हिदायत देती वो वहां से निकल गई। क्या है, सब लोग मुझे ही डांटते रहते हैं। आखिर मैंने गलत किया ही क्या? यहां सबको सिर्फ एहतिशाम की परवाह है। सब लोग ही पागल हैं। वो पांव पटकती अपने कमरे में चली आई। सामने ही बेड पर एहतिशाम की शर्ट पड़ी थी, जिसे गुस्से से उठाकर उसने दूर फेंका। सब कुछ उस शख्स की वजह से शुरू हुआ है। ना इससे मेरी शादी होती और ना मुझे यहां पल पल बेइज्जत होना पड़ता। वो रोने लग गई। उसी वक्त हल्का सा दरवाजा बजा। उसने सर उठाकर देखा तो दरवाजे पर मरीना खड़ी थी। इसे रोते देखकर मरीना अंदर आई और दरवाजा बंद किया। उसके करीब आकर बैठ गई। क्या हुआ मिराल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आज फिर झगड़ा किया है क्या? जिस वक्त घर में यह सब चल रहा था वो हॉस्टल में थी। घर आई तो पता चला कि एहतिशाम गुस्से से घर से चला गया है और मिराल कमरे में बंद है। मिराल उसे देखकर उसके गले लगकर रोने लग गई। फिर जब वो चुप हो गई तो सारी बात दोहरा दी। देखो मरीना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। तुम्हारा भाई मुझे समझता ही नहीं। अब ऐसे रिश्ता थोड़ा ही ना चलता है, और घर वाले भी मुझे ही गलत समझते हैं। वो अपना सारा कसूर दूसरों पर डालकर खुद को बरीउज़्ज़मा कर रही थी। मरीना ने उसकी सारी बात सुनी और फिर गहरा सांस लेते उसकी तरफ मुड़ी। मैं जानती हूं तुमसे यहां पर कोई भी नफरत नहीं करता, बल्कि सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। बस इतनी सी बात है कि तुम इस चीज को समझ नहीं पा रही और वो लोग तुम्हें समझा नहीं पा रहे। देखो, भाई तुमसे नफरत नहीं करते, ना ही तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखते हैं। मैं जानती हूं तुम एक अलग माहौल से यहां पर आई हो, तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। और दूसरा, तुम्हारी शादी भी बड़ों के कहने पर हुई है। अब जब तुमने शादी कर ली है और तुम किसी और को पसंद भी नहीं करती, तो भाई के साथ रहने में क्या मसला है? और अगर नहीं रहना चाहती तो आराम से बैठकर भाई से बात करो। मैं भी जबरदस्ती के रिश्तों की कायल नहीं हूं, लेकिन यूं सबके सामने अपने शौहर का तमाशा लगाना अच्छी बात नहीं। एक बार अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच कर देखो। सबके सामने तुमने जो बातें कही, क्या वो कहने वाली थी? आज पहली बार मरीना उसकी साइड लेने के बजाय हकीकत खोलकर उसके सामने बयान कर रही थी। पहले तो मिराल को गुस्सा चढ़ा, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ कहाँ गलत थी। बेशक उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और हर वक्त उससे रिवायात की पासदारी का कहा जाता था, लेकिन उसका खुद का बर्ताव भी बहुत ही खराब था। मरीना की बात बिल्कुल ठीक थी। वो तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी, और एहतिशाम एक हैंडसम मर्द था। उसके पास हर वो चीज थी जिसकी एक औरत ख्वाहिश कर सकती है, और वो जानती थी कि गांव की बहुत सी लड़कियां एहतिशाम को पसंद करती हैं। मगर मिराल को शुरू से एक ही गम था कि उसे बिना पूछे ही उसकी शादी कर दी गई है। मरीना ने उसे बताया कि पूछा तो एहतिशाम से भी नहीं गया था, लेकिन उसने कभी कोई शिकवा नहीं किया। और ये बात मिराल को काफ़ी ज़्यादा हैरत में मुब्तला कर रही थी कि वो तो एक मर्द है, फिर भी उसकी मर्जी के बिना ये फैसला कर लिया गया। बहरहाल उसने दिल ही दिल में सोचा, जब आज एहतिशाम वापस आएगा तो उससे माफ़ी मांग लूँगी और साफ साफ बता दूंगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तरीके से मुझे अलग कर दे। फिर फैसला करके वो मुतमईन हो गई। लेकिन रात तक इंतज़ार करती रही, मगर एहतिशाम नहीं आया। जब से वो घर से गुस्से से निकला था, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। ये बात उसे अपने कज़न से पता चली थी। घर में सब लोग परेशान थे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था
कि उसने अपना फोन बंद रखा हो। सब लोग इसे ही गुस्से से देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे सब इसे ही कसूरवार समझ रहे हैं। वो बिना किसी को कोई जवाब दिए चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। अब उसका दिल भी थोड़ा परेशान हो रहा था। कुछ भी होता वो घर में फोन करके इत्तला तो कर देता था। जब रात के 1 बजे तो उसके पापा ने कहा, मैं देखकर आता हूं कि वो कहाँ है। फिर उसके चाचू और पापा वगैरह गांव में जगह जगह उसकी तलाश करने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरा गांव छान मारा, मगर एहतशाम का पता ना चल सका। फजर तक वो सब लोग बैठकर उसका इंतजार करते रहे। वो अपने कमरे में बैठकर चुपचाप आंसू बहाती रही। बीच में मरीना उसके पास आई थी और उसे समझा कर गई थी कि अब अगर भाई घर आए तो कोई भी उल्टी बात मत करना। उल्टी बात क्या, वो तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उस एक रात ने इसे समझा दिया था कि एहतशाम उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। वो जो कुछ घंटों पहले उससे अलग होने का फैसला कर रही थी, अब वो सब भुरभुरी रेत साबित हुआ था। फजर की अजानें उसके कानों में पड़ी तो उसने फौरन से उठकर वजू किया, जायनुमाज बिछाई और नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। उसकी सलामती की दुआएं मांगने लगी। या अल्लाह, बस एहतशाम ठीक हो जाए, मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी और कभी भी उससे अलग होने का नहीं सोचूंगी। रोते हुए वो बस एक ही दुआ कर रही थी और फिर रोते रोते कब वो जायनुमाज पर ही बैठकर सो गई उसे पता ही नहीं चला। दोबारा उसकी आंख किसी की बातों की आवाज़ से खुली थी। जैसे ही उसने उठकर देखा तो सामने ही मरीना और उसकी मामा बैठकर एक दूसरे से कोई बात कर रही थी। इसे उठते देखकर फौरन से इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। बेटा, उठकर कुछ खा लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया और कब से तुम इसी हालत में हो, रात भी तुमने खाना नहीं खाया था, उन्होंने मिराल से कहा। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर मरीना की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, उनका कुछ पता चला? मरीना ने नफी में सर हिला दिया। यार, तू यूं घर छोड़कर क्यों आ गया है? तेरी बीजान बार बार फोन करके मुझसे तेरे बारे में पूछ रही हैं। आखिर मैं उनसे कितना झूठ बोलूं? हर बार यही कहता हूं कि तुम मेरे घर पर नहीं हो। अब जल्दी से घर पर फोन करके बता दो कि तुम खैर खैरियत से हो। फरहान उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते बोला तो उसने गुस्से से फरहान की तरफ देखा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और अब अगर कोई तुमसे सवाल करे तो कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता और अब तुम्हें कोई कॉल ना करे। उसके दोक टोक अंदाज पर फरहान खामोश हो गया। कल रात से ही वो उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। गुस्से में उसके घर आया था और मोबाइल भी बंद करके बैठ गया था। हवेली में सब लोग जानते थे कि फरहान उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए सब लोग बारी बारी से फोन कर रहे थे। लेकिन एहतशाम के कहने पर उसने उन लोगों से झूठ बोल दिया कि एहतशाम के बारे में वो कुछ नहीं जानता। फरहान को उसने असल बात नहीं बताई थी, ना ही फरहान ने पूछी थी, मगर हैरत तो उसे इस बात पर हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो वो यूं घर छोड़कर यहां बैठा हुआ है। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया था। ना तो वो बाहर निकल रहा था और ना ही फरहान से कोई बात कर रहा था, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। और फिर शाम तक वो यूं ही रहा। अपना नंबर उसने ऑन नहीं किया था। मुसलसल कॉलों से परेशान होकर फरहान ने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया। एहतशाम को रह रहकर मिराल पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से सबके सामने उसे इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी थी और ऊपर से वो इससे तलाक लेना चाह रही थी। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा मिराल बेबी, बताऊंगा मेरा होना या ना होना कितना मायने रखता है। दिल ही दिल में इरादा करते उसने अपना मोबाइल ऑन किया। वो जानता था कि बीजान लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे और बीजान की तबीयत भी खराब रहती थी, इसीलिए फौरन से उसने मरीना का नंबर डायल किया। जिस वक्त मरीना के पास उसकी कॉल आई
वो मिराल के करीब ही बैठी थी। जैसे ही उसने फोन उठाया तो एहतशाम ने फौरन से कहा, अगर तुम मिराल के पास बैठी हो तो वहां से उठकर कहीं और चली जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और उसे मेरे फोन का मत बताना। अपने भाई की हिदायत पर मरीना वहां से उठकर बाहर आ गई और टेरेस पर आकर उससे बात करने लगी। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद उसने फोन रखा और नीचे बीजान के कमरे में आई, जहां सब लोग परेशान बैठे थे। बीजान की तबीयत भी खराब हो रही थी। बीजान, भाई का फोन आ गया है, उन्होंने अभी मुझसे बात की है, वो खैर खैरियत से हैं और फरहान भाई के घर पर हैं। उनके मना करने पर ही फरहान भाई ने कुछ नहीं बताया, लेकिन भाई का कहना है कि मिराल को कुछ ना पता चले। आप लोग इस बात को छुपा कर रखना। सबको हिदायत देकर वो वापस मिराल के कमरे में आ गई, जो अब तक बैठकर आंसू बहा रही थी। पहले मरीना ने सोचा था कि वो उसे बता दे कि भाई कहाँ है और उनकी कॉल आई है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। वो चाहती थी कि मिराल को एहसास हो कि उसने गलती की है। ये ना हो कि एहतशाम की खैरियत की खबर सुनकर वो दोबारा से पहले जैसी हो जाए। वो कभी भी अपने भाई और मिराल का घर तबाह होते नहीं देख सकती थी। सब लोगों की यही ख्वाहिश थी कि वो दोनों साथ में रहें, और वो अच्छे से वाकिफ थी कि वो दोनों भी साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस बात का इजहार करने से कासिर हैं। मिराल की पिछली चंद घंटों में जो हालत थी वो उसके सामने थी, और वो हालत चीख चीख कर कह रही थी कि वो एहतशाम के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन ये कहते हुए उसकी अना आड़े आ रही थी। और फिर अगले 2 दिन तक एहतशाम ने मिराल से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। घर वालों ने भी मिराल पर ऐसे जाहिर किया जैसे वो एहतशाम के बारे में कुछ नहीं जानते, और सब लोग उसकी वापसी के लिए फिक्रमंद हैं। आखिरकार मिराल का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि वो रोने की वजह से और मुसलसल भूखे रहने की वजह से बेहोश हो गई थी। मरीना ने फौरन से कॉल करके एहतशाम को इस बात की इत्तला दी, तो वो भी सब कुछ भूल कर दौड़ा दौड़ा अस्पताल आन पहुंचा। उसने सोचा नहीं था कि मिराल उसकी गुमशुदगी की खबर सुनकर इस हाल को आ पहुंचेगी। वो तो बस उसे एहसास दिलाना चाहता था, उसे तकलीफ देने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब वो उसके सामने बेहोशी की हालत में अस्पताल के इमरजेंसी रूम में बेड पर लेटी थी। वो शीशे के दरवाजे के पार खड़ा इसे देख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर उन्हें इत्तला दी कि मुसलसल टेंशन की वजह से इनकी ये हालत हुई है। कुछ देर में होश आ जाएगा, अभी नींद का इंजेक्शन दिया है, जब जाग जाएंगी तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखना। फिर चंद घंटों बाद उसे होश आया तो वह एहतशाम को पुकारने लगी। एहतशाम तेजी से अंदर आया। उसे अपने सामने देखकर मिराल को यूं लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। आप कहाँ चले गए थे? आज पहली बार उसने आप कहा था। एहतशाम इतने बदलाव पर हैरान रह गया। फिर वो एहतशाम के सामने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगने लगी। मैंने आपकी मोहब्बत को नहीं समझा और अपनी जिद और अना में कभी भी हमारे रिश्ते को वक्त नहीं दिया। मुझे माफ कर दे, सबके सामने मैंने आपको बेइज्जत किया। एहतशाम ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं भी अपनी अना को बीच में लाता रहा और हमेशा गुस्से से काम लिया। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था। यूं दोनों आपस में गिले शिकवे दूर करने लगे। बाहर खड़ी मरीना, बीजान और अहमद शाह ने जब ये मंजर देखा तो मुस्कुरा उठे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।